So good morning everyone. Today in this video we are going to discuss about a last topic from your second chapter, that is viruses, viroids and lichens. So we need to know about viruses, what is the structure of the virus, and viroids as well as lichens, what are lichens. So we have to study in this whole session. And remember one thing, that I'm not telling you about the plants and animals because we know very well that in the further chapters like chapter number 3 and 4 we have to study about the animals as well as plants. So I'm not discussing about plants and animal kingdom in this session. Okay, just I'm telling you about last topic, that is viroids, viruses and lichens. Okay, so let's get started the video with the first topic, that is virus, and next we will discuss about viroids, and then we will further with we will have a lichens structure. Okay, so as you can see over the screen that you know very well that 5 kingdom classification, that is which is given by R.H. Whitaker. So we know very well that Whitaker described 5 kingdoms. We know very well: Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia, and all 3 we have discussed, Monera, Protista and fungi. Till the date we have not discussed about Plantae kingdom, Plantae and Animalia. We will talk about these 2 further in the next chapter. Now we are talking about virus. Okay, so there is no mention of some acellular organism like viruses and viroids and lichens, according to the Whitaker, who had not mentioned about the viruses structure, viruses, viroids and lichens in the among the 5 groups that he described. So these are briefly introduced here. Okay, because these are not categorized into the 5 kingdoms classification. So now we will talk about these 3 viruses, viruses and lichens because they were not categorized. Okay, so just know about the second paragraph, ki all of us who have suffered from the illness effects of common cold, we know very well what is common cold, flu, known what effects viruses can have on us, even if we do not associate it with our condition. यानी ये जितनी भी बीमारियां होती हैं, वी नो कि ये वायरसेस की वजह से होती हैं, कॉमन कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है. सो कहीं ना कहीं वायरस का एक इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर. सो viruses did not find a place in classification since they are not true living, because ये acellular होते हैं, ये cellular नहीं होती, ये acellular structures के होते हैं. so इसलिए और इसको कहीं ना कहीं इसको living भी नहीं कहा गया है. ये true living तो नहीं होते हैं क्योंकि acellular है और true living भी नहीं है. so इसलिए ये categorized नहीं हो पाए थे classification के अंदर. so we understand the living as those organisms that have a cell structure. जैसे कि हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, सेल्स होती हैं. सो यहाँ पर इनके सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, सो इस वजह से ये कैटेगराइज नहीं है क्लासिफिकेशन में. द वायरसेस और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जी हाँ, नॉन सेलुलर होते हैं यानी ए सेलुलर होते हैं. ए सेलुलर मतलब सेल एब्सेंट. that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. अगर ये किसी भी लिविंग सेल से बाहर की तरफ मिलते हैं तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्रिस्टल की फॉर्म में होती है. मान लीजिए ये क्रिस्टल की फॉर्म है, ये क्रिस्टल की फॉर्म है. सो इनर्ट क्रिस्टल की फॉर्म इनकी होती है. इनर्ट, व्हाई आर वी यूजिंग इनर्ट? बिकॉज इनर्ट मीन्स कि इनएक्टिव, इनएक्टिव होते हैं, या एक तरीके से कह लें कि जब तक इनको लिविंग सेल नहीं मिलेगी तो ये काम नहीं करेंगे. सो इनको होस्ट की ज़रूरत होती है या लिविंग मशीनरी की ज़रूरत होती है. सो जैसे कि हमें पता है अभी तक कोरोना जो चल रहा है इस टाइम, सो उसको भी होस्ट चाहिए, उसको एक बॉडी चाहिए, उसके अंदर ही वो मल्टीप्लिकेशन करेगी और बीमारी करेगी. ओके, किल करेगी सेल्स को. सो वंस ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे कुछ, अभी हम बात करेंगे क्या है. वंस इन्फेक्टेड सेल take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Would you call virus living or non-living?
हाँ जी हाँ, अभी हमने इनको ए सेलुलर बोला है वायरसेस को, क्योंकि ये बाहर जब तक होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। जैसे ही इनको एक लिविंग सेल, एक लिविंग बॉडी जिसको हम होस्ट बोलते हैं, अब वो प्लांट भी हो सकते हैं या एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो उनके अंदर जैसे ही वो एंट्री करते हैं तो उनकी जो खुद की मशीनरी होती है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे ऊपर अगर एक वायरस ने अटैक कर दिया है, सो मैं उसके लिए एज ए होस्ट का काम करूंगा, एक लिविंग सेल का काम करूंगा। मेरी बॉडी की जो मशीनरी है अंदर से, वो इसको यूज़ करने लगता है। वायरस मल्टीप्लिकेशन, रेप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं, नॉर्मली रिप्रोडक्शन करता है। सो पॉपुलेशन उसकी बढ़ती है, दैट मीन्स की मल्टीप्लिकेशन होता है। सो उसकी वजह से वो हमारे धीरे धीरे सेल को किल करने लगता है, जिसकी वजह से हमें हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। सो इसलिए हम इनको क्या कहने वाले हैं, वायरस क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग? ये दोनों ही है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। लिविंग कब है? जब ये बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है, लेकिन जब तक ये बाहर रहता है तो इसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग। ओके, सो जैसे कि कोरोना आपको पता है वायरस है, जिसके बारे में अलग अलग मिथ और ये हाइपोथेसिस जो चल रहे हैं, जो कि फेक अकाउंट्स ज़्यादा चल रहे हैं कोरोना के बारे में, रियल कोई नहीं जानता। इवन हमारा तो हक भी बनता है कि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के बच्चे हैं, तो हमें जानना चाहिए कि वायरस है क्या। ओके, सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं कि वायरस के बारे में कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि किस साइंटिस्ट ने क्या वायरस के बारे में थोड़ा बताया है। सो द नेम वायरस, जो वायरस का जो नाम है, दैट मीन्स विनम और पॉइजनस फ्लूइड, एक लिक्विड जो कि खतरनाक लिक्विड है, पॉइजनस लिक्विड, विनम जिसको हम बोल रहे हैं, जो कि दिया था लुइस पास्चर ने 19th सेंचुरी के अंदर। 19th सेंचुरी के अंदर जो पास्चर है, यानी लुइस पास्चर, उन्होंने पॉइजनस फ्लूइड बताया था वायरस को। ओके, फिर इनके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जो कि 1898 में उन्होंने क्या किया, जिनका नाम है डीजे इवानोस्की जो है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया टोबैको मोज़ेक वायरस जैसा एक डिसीज। ओके, जो कि टोबैको प्लांट होता है, तंबाकू का जो प्लांट होता है उसके ऊपर डिसीज करता है, मोज़ेक स्ट्रक्चर्स बना लेता है वो। सो मोज़ेक स्ट्रक्चर जो बनाए वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से, एक कोज़ल ऑर्गेनिज्म है जो कि बीमारी करता है। फिर बाद में ये और इनके अभी एक विजनिक आएंगे, MW विजनिक, उन्होंने साथ में मिलकर इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की, इसके बारे में पता लगा, उसको डिस्कवर किया। सो दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरियाज प्रूफ फिल्टर। इनको क्या कहा गया कि बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटा इनका साइज होता है, क्योंकि जब इनके बैक्टीरिया वाले जो फिल्टर से इनको पास किया गया तो वो पास हो गए। ओके, सो तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि उनका साइज छोटा होगा इसलिए वो पास हो गए फिल्टर से, तो दैट मीन्स कि वायरस ज़्यादा छोटे होते हैं बैक्टीरिया से। फिर आते हैं साइंटिस्ट MW विजनिक, जिन्होंने 1898 में डिमॉन्स्ट्रेट किया द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टिव प्लांट्स की। उन्होंने टोबैको प्लांट से वायरस का जो इन्फेक्शन था, यानी कि जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन था जिस एरिया में, लीव्स में टोबैको प्लांट के, तो उसको उन्होंने जो उसका जो सैप था, जो उसका जूस था, उसको निकाला इन्फेक्शियस प्लांट का, और उस जूस को उन्होंने किसी हेल्दी प्लांट के लीव्स के ऊपर डाला। तो हुआ क्या कि वो हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो गया इस टोबैको प्लांट के मोज़ेक जो वायरस की वजह से, वो भी इन्फेक्टेड हो गया। ओके, सो यहाँ पर लिखा भी है कि आप देख सकते हैं, plants of tobacco could cause the infected healthy plants and call flu as contagium, क्योंकि इन्फेक्ट कर दिया उसने हेल्दी प्लांट को, तो उन्होंने इसको क्या बोला MW विजनिक ने, कि इसको हम बोलते हैं कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड, एक ऐसा लिक्विड जो इन्फेक्शन करता है किसी लिविंग चीज के अंदर। ओके, फिर आते हैं इनके बाद साइंटिस्ट WM स्टैनली 1935 में, जिन्होंने वायरस की स्ट्रक्चर को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बताया। ओके, जो कि लार्जली किसकी बनी होती है, प्रोटीन कोट की बनी हुई होती है। वायरस के स्ट्रक्चर को अभी हम देखेंगे पिक्चर में। सो वो उसकी जो कोटिंग होती है, उसका जो बाहर की कोट होती है, उसको प्रोटीनेशियस कोट उन्होंने बोला, और क्रिस्टलाइन फॉर्म उसको बताया। और दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, जब तक वो बाहर रहते हैं तो इनर्ट फॉर्म में रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, जैसे ही अंदर जाते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं, होस्ट की मशीनरी को यूज करने लगते हैं। सो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, जी हाँ, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं वायरस, क्योंकि इनको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक होस्ट, एक लिविंग सेल की जरूरत होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। बिना होस्ट के ये काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको जरूरत होती है कि एक बॉडी, एक होस्ट सेल जरूर मिले। ओके, फिर आते हैं इनकी कुछ स्ट्रक्चर्स, जेनेटिकली इनकी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जैसे हमारा DNA है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है या DNA है। सो दोनों ही तरीके के इनके जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलते हैं।
इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। अगर मान लीजिए एक प्रोटीन कोट है तो इसके अंदर जो ये है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे इसका जेनेटिक मटेरियल। अब वो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड हो सकता है, ऐसे ही डीएनए भी डबल स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंड वाला जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर हो सकता है। बाहर का जो कोट है दिस इज कॉल्ड प्रोटीनेशियस कोट, प्रोटीन कोट। कैप्सिड जिसको हम अभी फर्दर पढ़ने वाले हैं टोबैकोमोज़िक वायरस में और बैक्टीरियोफाज के अंदर। सो ओवरऑल क्या है कि जेनेटिक मटेरियल का आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दैट कुड बी द आइदर आरएनए और डीएनए, मैंने आपको बता दिया है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, मतलब ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसके पास आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ हों, ऐसा कोई वायरस नहीं। या तो आरएनए ही होगा या डीएनए होगा, चाहे वो एक सिंगल स्ट्रैंड हो या डबल स्ट्रैंड हो। जैसे अगर हम कोरोना की बात करें जो इस टाइम लेटेस्ट में कोरोना वायरस चल रहा है, सो उसके अंदर होता है पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जैसे कि एक स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है, तो ये किसका है? आरएनए का। तो आरएनए का बना हुआ है कोरोना वायरस। ओके, सो ए वायरस इज क्या है? ए न्यूक्लियोप्रोटीन, एक न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन का बना हुआ एक कोट होता है उसके पास। तो न्यूक्लियोप्रोटीन हम इनको बोल देते हैं। ओके, नाइट्रोजन बेस इसके अंदर लगी होती हैं, फॉस्फेट, ये चीजें लगी होती हैं। सो फिर आता है इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब क्योंकि इन्फेक्शन करता है, बीमारियां करता है प्लांट्स एंड एनिमल्स को, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। फिर आता है जनरल में वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। एंड जो वायरस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसमें आप अंडरलाइन कर लेना कि वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं तो उनका जो वायरस का आरएनए होगा वो किस तरीके का होगा? तो वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। प्लांट्स को जो बीमारी करते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है और कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड, जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो वहां पर कैसा होगा? या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या फिर वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। अब चाहे वो आरएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है, या आरएनए डीएनए, मतलब कोई भी सा भी इसमें से हो सकता है। फिर आते हैं बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस। जनरली बैक्टीरियल वायरसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया को किल करने वाले होते हैं या बैक्टीरिया को जो खाने वाले वायरसेस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। फेजेस का मतलब होता है टू ईट, बैक्टीरिया का मतलब पता ही है आपको। सो बैक्टीरिया को ईट करने वाले, किल करने वाले, खाने वाले, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। तो ऐसे वायरस भी होते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, किल करे, जो भी है, तो उसको हम बोल रहे हैं बैक्टीरियोफेजेस। सो यहाँ पर एक यूजुअल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसकी हम बात करें, दैट आर यूजुअली जो एक बैक्टीरियोफेज है वो कैसे यूजुअली कैसा होता है? स्ट्रैंडेड, कैसा? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड वायरस होता है बैक्टीरियोफेज। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर्स। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पीछे आपकी बुक में है कि उसकी जो प्रोटीन बाहर का जो कोट होता है, मान लीजिए वायरस है, इसका जो बाहर का कोट है ये होता है कैप्सिड, यानी प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड। और ये जो बना होता है ये इस तरीके से हेलिक्स स्ट्रक्चर्स मिलने हो सकते हैं, हेलिक्स हो तो वो होती हैं, उनको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स से मिल मिल के बनता है कैप्सिड, प्रोटीन कोट, और जिसके अंदर रखा होता है जेनेटिक मटेरियल। हो सकता है डीएनए हो सकता है आरएनए हो। तो लेकिन हम बैक्टीरियोफेजेस की बात कर रहे हैं तो वहां पर है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल और बाहर है कैप्सिड। ओके, सो फिर आता है द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, ये मैंने आपको बता दी है। कैप्सोमियर्स आपको बता दी है, प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। जो ये कैप्सिड है ये न्यूक्लिक एसिड को बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है जेनेटिक मटेरियल को, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल, अब वो हेलिकल शेप हो सकते हैं जैसे कि डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, दिस वन हेलिक्स स्ट्रक्चर, और या वो पॉलीहेड्रल शेप्स के भी हो सकते हैं, इस शेप के भी हो सकते हैं पॉलीहेड्रल। ओके, सो ये ज्योमेट्रिक फेज इनकी हो गई है। फिर अगर हम बात करें वायरसेस के डिसीज कर सकते हैं, डिसीज भी करते हैं, आपको पता है पोलियो होती है, मम्स होते हैं, स्मॉल पॉक्स होती है, हर्पीज होती है, इन्फ्लुएंजा होती है, एड्स होता है, ये सभी क्या है? वायरसेस के से होने वाली बीमारियां हैं। अगर प्लांट की बात करें तो वहां पर भी बीमारियां होती हैं वायरसेस से, जैसे कि टोबैकोमोज़िक वायरस जिसके शॉर्ट में बोलते हैं TMV। फिर होता है लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, लीफ रोलिंग, और येलोइंग हो जाती है, क्लियरिंग हो जाती है, वीन क्लियरिंग, वीन्स गायब हो जाती हैं प्लांट्स के लीफ की। वीन्स जो होती है, मान लीजिए लीफ है, ये इसकी छोटी छोटी वीन्स है, तो ये धीरे धीरे क्लियरिंग होने लगती है, साफ दिखने लगती है, यानी कि उनका क्लोरोफिल खत्म होने लगता है। डॉफिंग होती है, प्लांट छोटे रह जाते हैं, स्टंट ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, तो ये वायरस की वजह से बीमारियां हो जाती हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि
क्या वायरस होते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ये है जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है टोबैको मोज़ेक वायरस की। ओके, सो और दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो है बैक्टीरियोफेजिस। ओके, ये है बैक्टीरियोफेज। सो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रेड कलर में जो दिखा रखा है वो आरएनए है, और ये है कैप्सिड जो प्रोटीन का बना होता है जो प्रोटेक्ट करता है। और जो है ये है स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेजिस, जो कि हेड स्ट्रक्चर दिखा रहा है, पॉलीहेड्रल शेप दिखा रखी है। जो प्रोटीन कोट जिसको हम बोल रहे हैं, दिस वन इज प्रोटीन कोट कैप्सिड, और जो कि बना होता है कैप्सोमियर्स का, और जिसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। ओके, जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आपको पता है इसमें डबल स्ट्रैंडेड वाला डीएनए होता है। और बाकी ये जो है इनकी टेल फाइबर्स हैं जो कि बॉडी के अंदर एंट्री करने के लिए यूज़ होते हैं। सो अब चलते हैं हम अब नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वायरॉइड्स, जो कि देखो वायरस से ही एक नाम सजेस्ट हो रहा है, वायरस से ही कहीं ना कहीं निकल कर आया होगा, क्योंकि वायरॉइड्स को अगर मैं अलग दो पार्ट में डिवाइड करूँ तो वायरस एंड डिवॉइड्स, एक तरफ आप लिख लेंगे वायरस और दूसरा कर देंगे डिवॉइड का मतलब होता है कमी, यानी कि कहीं ना कहीं ये वायरस के स्ट्रक्चर्स होती हैं, कहीं ना कहीं ये वायरस के स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ चीज़ों की डिवॉइड्स होती है, कमियां होती हैं, इसलिए हम इनको वायरस नहीं कह सकते, यानी कुछ चीज़ की इसके अंदर कमी होती है। तो कमी क्या है, किस चीज़ की होगी? जैसे वायरस के अंदर प्रोटीन कोट होता है तो इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, इनके पास फ्रीली आरएनए होता है। मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है तो ये है वायरॉइड, क्योंकि इसके मैंने चारों तरफ से इसको कवर्ड नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया, कैप्सिड नहीं बनाया, यानी प्रोटीनेशियस लेयर नहीं बनाई। तो जिसकी प्रोटीनेशियस लेयर ना हो, जिनका जो इन्फेक्शियस आरएनए है, तो वो होता है वायरॉइड्स। सो वायरॉइड्स क्लियर कर लेना, वायरस प्लस डिवॉइड्स, वायरस की स्ट्रक्चर डिवॉइड्स यानी प्रोटीन गायब। अब इन्होंने 1971 में टी.ओ. डीनर हैं जिन्होंने डिस्कवर किया है इन्फेक्शियस एजेंट जो कि है वायरॉइड, दैट वाज स्मॉलर देन वायरस से भी छोटा होता है, और जो बीमारी करता है पोटैटो के अंदर स्पिंडल शेप्ड पोटैटो की शेप होने लगती है, और जो कि होता है फाउंडेड टू बी ए फ्री आरएनए, और फ्री आरएनए वहाँ पर होता है, प्रोटीन की लेयर वहाँ पर नहीं होती। सो यहाँ पर लिखा हुआ है इट लैक्स द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस। प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन की कोड की कमी होती है, सिर्फ ये आरएनए फ्रीली आरएनए होता है, खाली ये आरएनए है, बाकी प्रोटीन है ही नहीं है। सो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं वायरॉइड्स, जो बीमारी कर रहा है। और बाकी द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें इनकी, तो इनकी वायरस से जो होती है वो कम होती है। तो आरएनए का जो वायरॉइड का आरएनए है वो होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, वायरॉइड है जो कि वायरस से छोटा है, ओके, और जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट है आरएनए का, जिसके अंदर आरएनए होता है लेकिन प्रोटीन नहीं होता, लैक ऑफ प्रोटीन। सो टी.ओ. डीनर ने इसको डिस्कवर किया। लास्ट टॉपिक है लाइकेन, जो कि आपको पता है छोटी क्लासेस में आपने डिस्कस किया है लाइकेन के बारे में। सो लाइकेन काफ़ी इजी है कि होता क्या है कि कुछ लाइकेन एक तरीके से क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन वही होती है जहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उस रिलेशनशिप को, उस एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन की फॉर्मेशन है, लेकिन अब हमें पता है जब भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है तो दो ऑर्गेनिज्म जरूर होते हैं। तो यहाँ पर लाइकेन वो कौन से दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से लाइकेन बना होगा? सो एक होता है फंजाई, एक होता है एल्गा। ओके, एल्जी दैट मीन्स एल्गा, और फंजाई दोनों के दोनों, एल्गा प्लस फंजाई दोनों मिलकर साथ रहते हैं, एक नई स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइकेन। ओके, सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो लिखा है द म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्जी एंड फंजाई, तो यहाँ पर एल्जी और फंजाई के बीच में जो एसोसिएशन मिलकर बनी है, दोनों एक दूसरे को फायदा कर रहे हैं। सो ऐसी कंडीशन में इसको रिलेशनशिप को एसोसिएशन बोलते हैं सिम्बायोटिक। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोट। ओके, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है, ये है स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पर दो कंपोनेंट्स बनाए हैं, एक एल्जी वाले कंपोनेंट्स हैं और एक फंगस वाले हैं। मान लीजिए ये तो है फंगस और दिस वन इज एल्जी। सो एल्जी वाले कंपोनेंट, ये जो जहां एल्जी वाले कंपोनेंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे फाइकोबायोट, और जहां फंगस वाले कंपोनेंट्स होंगे, तो जैसे कि ये है मैंने नीचे वाले बनाए, तो ये होंगे माइकोबायोट, क्योंकि हमें पता है फंगस और एल्गी से मिलकर बना होता है हमारा लाइकेन। तो जहां जहां एल्गी पाए जाएंगे उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फाइकोबायोट, क्योंकि फाइको कहीं पर भी लग जाता है तो एल्गी की बात होती है ज़्यादातर।
सो माइको जहाँ पता है वहाँ फंगस की बात होती है। तो फाइको मतलब एल्गी वाला कंपोनेंट, एल्गी वाला कंडीशन, और माइक्रोबायोट जहाँ पर फंगस वाली स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, दोनों से मिलकर बन गया लाइकेन। सो अगर मैं बात करूँ विच आर ऑटोट्रॉफिक सॉरी जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं विच आर, यहाँ पे लिखा है कि एल्गी कंपोनेंट हमने कर लिया, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली, कि देखो एल्गी हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है तो वो ऑटोट्रॉफिक नेचर में होंगे, और माइक्रोबायोट जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, क्योंकि फंगस आ गए हैं, फंगस ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, फंगस होती है हेटरोट्रॉफिक, क्योंकि दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं वो। सो रिस्पेक्टिवली फाइकोबायोट क्या है, ऑटोट्रॉफिक, और माइक्रोबायोट होते हैं हेटरोट्रॉफिक। आई होप कि फाइको एंड माइक्रोबायोट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक नंबर में पूछ लिया जाता है माइक्रोबायोट क्या होते हैं। सो एलजी क्या करता है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक है तो वो अपने आप खाना बनाएगा फंगस के लिए, फंगस को खाना देगा बनाकर, और फंगस क्या करेगा, फंगस एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कराएगा, यानी घर प्रोवाइड कराएगा, रहने के लिए जगह देगा, शेल्टर देगा, एंड उसके साथ साथ उसको वाटर एब्जॉर्ब करके देगा सॉइल से, और वाटर के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरत होती है एल्गी को, उसको वो न्यूट्रिएंट्स भी, जैसे कि नाइट्रोजन है तो वो उसको न्यूट्रिएंट भी देगा वाटर के साथ साथ। तो पार्टनर का काम हो गया, दोनों का काम, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहे हैं, और दोनों की जो एक नई स्ट्रक्चर बनती है दोनों से मिलकर फाइको एंड माइको पोर्शन से, उसको हम बोलते हैं लाइकेन। अब देखो ये तो हमें पता चल गया कि सो इट्स एसोसिएशन ऑफ वन आर लाइक इन द नेचर, वन वुड बी नेचर, इमेजिन दैट हियर द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन इट। अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो इनके बीच में, इनके अंदर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, जबकि दिखता हमें सिर्फ लाइकेन है। और लाइकेन को हम क्या बोलते हैं, ये होती हैं वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। अब कैसे होते हैं, क्योंकि जिस एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा होगा उस एरिया में लाइकेन की जो जनरेशन है वो नहीं होगी, लाइकेन वहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। सो यहाँ पर लिखा भी है दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ लाइकेन नहीं होंगे। ओके, जहाँ लाइकेन ज़्यादा होंगे दैट मीन्स कि वहाँ का जो एरिया है वो पॉल्यूशन वाला नहीं है, यानी पॉल्यूशन फ्री है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया ये सारे टॉपिक। बाकी प्लांटी एंड एनिमल किंगडम को हम आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसको क्लियर यहाँ पर नहीं किया है। सो आई होप कि आपको चैप्टर में समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, और प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू एंजॉयड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, share and subscribe to my channel. So thank you so much. Stay home, stay safe.